Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we're going to talk about the respiratory physiology. The primary function of respiration is to obtain oxygen for cellular respiration and to eliminate carbon dioxide that was produced during the cellular respiration, to eliminate it out of the body. Mostly people relate breathing with respiration, and people think that the breathing in and breathing out of the air is actually respiration, but that is not actually the case. And in physiology it has a much broader meaning, which constitutes of two processes, that is cellular respiration and external respiration. So first of all, in respiration there is pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation is also called breathing, and it is the movement of air in and out of the lungs. When we inhale air, take it inside, and then when we exhale it back into the atmosphere, that is breathing, and that is actually the pulmonary ventilation. Then there is external respiration. External respiration is also called alveolar ventilation, and it is the movement of oxygen from lungs to the blood, and the movement of carbon dioxide from blood to lungs. The air that was inhaled during breathing, during the pulmonary ventilation, that air from the lungs, when move into the blood, that is, and when the carbon dioxide that was produced during the cellular respiration and that reached the lungs, when that carbon dioxide is moves from blood to the lung, is called the alveolar ventilation. Then there is internal respiration. This is actually a part of the cardiovascular system, and it is the movement of oxygen, the transport of oxygen from blood to tissues, and the transport of carbon dioxide from tissues to the blood. The oxygen after alveolar ventilation reached the blood, that oxygen, when reaches the tissues, that is the internal respiration, and the carbon dioxide that was produced during the cellular respiration, that carbon dioxide, when moves along with the blood and reaches the lungs, that is called when moves from the tissues to the blood, that is the internal respiration. Then there is cellular respiration. Cellular respiration is the metabolic reaction within the cells which consume oxygen and give off carbon dioxide during the production of ATP. Inside the cell, when the oxygen is burnt for the production of energy, and carbon dioxide is produced during that process, that is the cellular respiration. All right. So here we have the pulmonary ventilation. The exchange between the exchange of air between the atmosphere and the lungs. The oxygen enters when you inhale the air. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में चली जाती है, और जब हम एक्सलेशन करते हैं तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है. ये मूवमेंट इन एंड आउट मूवमेंट एयर की एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, ये कहलाती है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग. ठीक. देन देयर इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. And this external respiration, that was alveolar ventilation. So the external respiration is actually the exchange of the gases between the lungs and the blood. ये ऑक्सीजन जब पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद, इनहेलेशन के बाद, ब्रीदिंग के बाद एटमॉस्फेयर से लंग्स में गई थी, अब ये ऑक्सीजन एल्वेओलाई के थ्रू एल्वेओलर वेंटिलेशन से लंग्स से ब्लड में चली जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ ब्लड में आ गई थी यहाँ पे, ये जब ब्लड से वापस एल्वेओलाई में जाएगी, लंग्स में जाएगी, ताकि पल्मोनरी वेंटिलेशन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल सके. ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर एल्वेओलर वेंटिलेशन. देन ऑब्वियसली देयर इज़ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है अब इसने टिश्यूज़ में पहुंचना है, तो ये तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ जाएगा, ब्लड के साथ मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट होगी इस की. एंड उसके बाद यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने ब्लड से निकल के डिफ्यूज़ आउट होके सेल के अंदर जाना है, क्योंकि सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है. सो ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्लड से डिफ्यूज़ आउट होके ऑक्सीजन सेल में जाता है, टिश्यूज़ में जाता है, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बाय डिफ्यूजन मूव्स फ्रॉम द टिश्यूज़ इनटू द ब्लड. दिस इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन. So this is a
part of circulatory system. And then there is cellular respiration. सेल के अंदर ATP प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है ब्लड के साथ, लंग्स में पहुंचता है और एक्सहेल आउट हो जाता है. सो एवरी टाइम व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर, the air enters into the lung and the oxygen in that air moves into the blood, along with the blood reaches the tissues, enters the cell, and so that it can perform the process of cellular respiration. It can get burned, utilized, so that ATP can be generated and carbon dioxide is generated along with that, and then that carbon dioxide leaves the tissues, enters into the blood, moves along with the blood, reaches the lungs, and so it can be exhaled out. These are the steps of respiration. So now we have the lung volumes and capacities. During inhalation and exhalation, different amount of air move in and out of the lungs. These volumes of air can be, these amounts of air can be classified into two types: lung volumes and lung capacities. The lung volume can be measured by an instrument that is called spirometer, and the lung capacities are actually the combinations of different lung volumes. We'll see that when we will go to the chart of the lung volumes and capacities. So spirometer is an apparatus that is used to measure lung volumes and capacities, and that measurement is recorded by that is called the record is called spirogram. Here we have spirometer, and this person that is performing this test has this spirometer in the opening in its mouth. Nasal openings are closed. Through this pipe, the air is inhaled. Air that is present in this drum is inhaled when he inhales, so that the air can go into the lungs, and when he exhales, the air exhales out. Expired air comes out through this and enters again. ये जो स्पायरोमेट्री की जाती है, ये की जाती है लंग के लंग डिजीज़ चेक करने के लिए कि लंग में कैपेसिटी कितनी है, क्या कोई लंग डिजीज़ तो नहीं है, कि एयर जो है वो कम एयर अकोमोडेट कर पा रहा है, लंग नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही. सो नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चेक करने के लिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो इनहेल कर सकता है और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो एक्सहेल कर पा रहा है, जिससे लंग्स की फंक्शनिंग जो है वो चेक की जाती है. दैट इज़ डन बाय द स्पायरोमीटर. देन देयर इज़ दिस स्पायरोग्राम. ये स्पायरोग्राम जो है ये रीडिंग है, जिससे पता चलता है कि नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं या एबनॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं. व्हेन दिस ग्राफ व्हेन इट मूव्स अप, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जब इनहेलेशन होती है, जब एयर अंदर ली जाती है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता है, और जब एक्सहेलेशन होती है तो ये नीचे की तरफ आता है. ठीक. एंड दिस रीडिंग, ये जो स्पायरोग्राम की रीडिंग है, इससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं. In general, lung volumes and capacities are larger in males, taller individuals, younger adults, people who live at higher altitudes, and those who are not obese. ऐसे लोगों में लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं. नॉर्मली these values are larger in males as compared to females. And so various disorders of the lungs can be diagnosed. नॉर्मल वैल्यू के साथ जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो देखा जाता है कि कोई लंग डिसऑर्डर तो नहीं है. So here we have a graph, यानी यहाँ पे स्पायरोमीटर के ज़रिए जब ये स्पायरोग्राम बनता है तो इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं. जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन बताता है कि इनहेलेशन की गई है, और डाउनवर्ड की मूवमेंट बताती है कि एक्सहेलेशन हुई है. ठीक. So normally this chart is for a normal healthy adult male. ठीक.
एंड दी ऑब्वियसली दीज आर एवरेज वैल्यूज़, एवरेजेस जो हैं वो निकाली जाती हैं और एवरेज वैल्यूज़ देखी जाती हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली अगर कोई शख्स नॉर्मल नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी है लंग्स में, कोई डिसऑर्डर है, तो उसके वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं आएंगे। उसके अलावा भी जैसे हमने देखा ओबीस लोगों में जिनमें ओबेसिटी होती है उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती हैं क्योंकि लंग्स में स्पेस नहीं होती। उसके अलावा हमने देखा कि मेल्स की वैल्यू ज़्यादा है, फीमेल्स की कम है। टॉलर इंडिविजुअल्स में लंग्स जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लंग्स बड़े होते हैं, एयर अकोमोडेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बट ये जो ग्राफ निकला है ये ऑन एवरेज निकाला गया है, ये एवरेज वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फॉर दिस पर्सन, for a male, normal healthy adult male, the total lung capacity comes out to be 5800। ये जो वैल्यू है ये इस लंग्स में टोटल जो एयर अकोमोडेट हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास निकल रही है, दैट इज़ 5800 ml। ml में ये कैलकुलेट की जाती है, ठीक। सो फर्स्ट वैल्यू वी हैव टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस टाइडल वॉल्यूम, ठीक। ये जो ग्राफ बार बार ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है, this shows us the tidal volume. What is the tidal volume? Tidal volume is abbreviated normally as TV, sometimes also as V and then there is a T, but normally हम tidal volume को TV से abbreviate करते हैं। It is the volume of air inhaled and exhaled with each breath. हर दफ़ा जब हम inhalation करते हैं, normally जब हम आमतौर पे सांस ले रहे हैं, इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, उस नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी हम जब अपनी तकरीबन जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम बग़ैर सोचे समझे सांस ले रहे होते हैं, हमें याद नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, मगर हम ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ये जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो हम बग़ैर किसी फोर्स के, बग़ैर किसी मेहनत के वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम अंदर लेकर जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और फिर एक्सहेल कर रहे हैं, दिस नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ बिटवीन, दिस वैल्यू कम्स आउट बिटवीन 2300 to 2800। जो नीचे value है, this is 2300 and the upper one is 2800। Remember that these values are on average and they can vary from person to person। So this tidal volume, this is normally 500 ml। 23 से 2800 500 ml जो है वॉल्यूम ऑफ एयर निकलती है। इसका मतलब है कि नॉर्मली हम 500 ml ऑफ एयर इनहेल करते हैं और फिर हम 500 ml ऑफ एयर एक्सहेल आउट करते हैं अंडर अ नॉर्मल लाइव्स। Then there is inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume is abbreviated as IRV, and it is the maximum volume of air that can be inhaled after a normal inhalation। यानी एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन रिमेंबर टाइडल वॉल्यूम की बात हो रही है, 500 ml की बात हो रही है, नॉर्मल इनहेलेशन है, नॉर्मली जो आप एयर इनहेल करते हैं 500 ml। सो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आपने नॉर्मली एयर इनहेल की तो ऊपर जाएगा, हमने कहा इनहेलेशन में ऊपर वैल्यू जाती है स्पायरोग्राम की और एक्सहेलेशन में नीचे आती है। सो जब आपने नॉर्मल इनहेलेशन की तो वैल्यू आ गई 2800 पे। आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर तो 5800 तक आएगा क्योंकि इतनी स्पेस है लंग्स में। So the maximum volume of air that can be inhaled is the inspiratory reserve volume, the IRV। अब अगर नॉर्मल इनहेलेशन के बाद वैल्यू जो है वो 2800 थी और टोटल इनहेलेशन के बाद वैल्यू 5800 है, तो यू कैन कैलकुलेट इट, दिस कम्स आउट टू बी 3000 ml। This comes out to be 3000 ml। इसका मतलब inspiratory reserve volume is the value of inspiratory reserve volume IRV is 3000। Then we have the expiratory reserve volume ERV। It is the maximum volume of air that can be exhaled forcibly। Now remember, this is not after a normal this is not normal, this is the maximum volume of air that can be exhaled forcibly आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद
आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन, यानी नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम 500 ml ऑफ एयर जो है वो एक्सहेल आउट की गई तो वैल्यू जो है वो नीचे वाली लाइन पर आ जाएगी, that is 2300 ml. After this, the maximum volume of air that can be exhaled, the volume of air that can be exhaled forcibly, यानी आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन की, जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं, और उसके बाद फोर्सफुल एक्सहेलेशन की, कंप्लीट एक्सहेलेशन की. जब आप कंप्लीट एक्सहेलेशन करेंगे तो एयर जो है इतनी अमाउंट ऑफ एयर, दिस मच अमाउंट ऑफ एयर इज गोइंग टू बी एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, बाकी जो आउट ऑफ द लंग्स सॉरी, और बाकी जो है वो एयर लंग्स में रह जाएगी, क्योंकि लंग्स में वैक्यूम तो नहीं बनेगा, लंग्स में कुछ एयर तो रह जाएगी. इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप जब एक्सहेलेशन करेंगे, कंप्लीट एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, तो दिस मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज गोइंग टू बी एक्सहेल्ड आउट, और उसके बाद आप जितना भी हम कोशिश करें एयर एक्सहेलेशन फ्रॉम द लंग्स नहीं हो सकती. बेशक ये एयर जो है वो लंग्स में मौजूद है, मगर ये एक्सहेल आउट नहीं होगी. जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद हम और कोशिश भी करें तो एयर एक्सहेल नहीं होती, ऑल्दो के लंग्स में एयर मौजूद होती है. सो दिस वैल्यू, दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, this is the maximum volume of air that can be exhaled out आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन. नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जब आपने नॉर्मली एयर एक्सहेल आउट की और आपके पास वैल्यू जो है वो 2300 पे आ गई, उसके बाद जब जितनी कंप्लीट एक्सहेलेशन आप कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन आप कर सकते हैं, वो वैल्यू ऑफ एयर जो है वो होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ ERV. And since it is between 1200 to 2300, so this value is actually 1100 ml. ये 1100 ml है. Then we have the residual volume. Residual volume के नाम से पता चलता है जो remaining है. It is abbreviated as RV. It is the volume of air remaining in the lungs after a maximum exhalation. आपने maximum exhalation की, जितना एक्सहेल आप कर सकते थे आपने कर लिया, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह गई, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. दिस मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज गोइंग टू रिमेन इन द एयर नो मैटर व्हाट यू डू. आप जितना भी कोशिश करें, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सहेल इट आउट, एंड दिस इज 1200 ml. देन वी हैव द कैपेसिटीज. ये लंग वॉल्यूम्स थी और उसके बाद हमारे पास है लंग कैपेसिटीज. Lung volumes, the sum of the lung volumes make up the lung capacities. First of all, we have the VC, vital capacity. It is the maximum volume of air exhaled from the point of maximum inspiration. Remember, from the point of maximum inspiration, यानी पहले आप maximum inspire करें, maximum inhale करें. maximum inhale करेंगे तो वैल्यू तो 5800 पे आ जाएगी, पूरा का पूरा लंग जो है वो एयर से भर जाएगा और completely filled up हो जाएगा, and there will be 5800 ml of air in the lungs. After that, after this maximum inhalation, the maximum volume of exhalation, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल, जब आपने कम्प्लीटली इन्हेलेशन कर ली और पूरे लंग्स भर गए, 5800 ml ऑफ एयर जो है वो लंग्स में भर चुकी है, उसके बाद मैक्सिमम इन्हेलेशन, जितना एक्सहेल कर सकते हैं, यहाँ तक एक्सहेल कर सकेंगे, ये तो कर ही नहीं सकते. सो दिस वैल्यू, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी. This is the vital capacity, and it is between 1200 to 5800, and this value of vital capacity comes out to be 4600 ml. This VC is equal to TV plus IRV plus ERV. जैसे हमने कहा था कि लंग वॉल्यूम्स का सम जो है वो कैपेसिटीज बनाता है. सो TV plus IRV plus ERV makes up the VC. This TV plus IRV, this one, plus ERV, this one. So this plus this makes up the vital capacity. Then we have the inspiratory capacity, that is abbreviated as IC. The maximum volume of air inhaled after normal expiration. The maximum volume of air inhaled after नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो पहले आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी नॉर्मल एक्सहेलेशन की और टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 2300 ml पर आ गई. आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन
द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है जो इनहेल की जा सकती है। यहाँ से बात 2300 ml से बात स्टार्ट हो रही है, बिकॉज आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, जब आपने नॉर्मली एयर एक्सहेल आउट की, नॉर्मल 500 ml ऑफ एयर एक्सहेल आउट कर ली, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 2300 की थी, स्टार्टिंग वैल्यू थी, दिस मच अमाउंट ऑफ एयर वॉज प्रेजेंट इन द लंग्स। आफ्टर दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कुड बी इनहेल्ड, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inhaled is the inspiratory capacity. ठीक, it is between 2300 to 5800 and its value is 3500 ml. This IC is equal to TV plus IRV. TV plus IRV. This TV plus IRV makes up the inspiratory capacity. Then we have the functional residual capacity, FRC, the volume of air remaining in the lungs after a normal exhalation. After a normal exhalation, second part of the definition से शुरू किया करें ताकि आपको पता हो कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सा बन रहा है। यानी सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन यहाँ पे है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन आपको बताएगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। सो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी पहले नॉर्मली एक्सहेल जब किया गया और टाइडल वॉल्यूम जो है वो नीचे आ गया यहाँ पे 2300 ml, आफ्टर दैट द मैक्सिमम द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, यानी टीवी जब नॉर्मली एक्सहेल आउट किया गया और वैल्यू 2300 पर थी, आफ्टर दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्ड इन द लंग्स वाज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली 2300. FRV is equal to ERV, FRC, this should be FRC. FRC is equal to ERV plus RV. FRC is equal to this ERV plus RV. Expiratory reserve volume plus residual volume makes up the functional residual capacity. Then finally we have the total lung capacity, TLC, the volume of air in the lungs after a maximum inspiration. यानी the total volume of air that a lung can hold. Lung में total जितनी capacity है, that is the total lung capacity, and for a normal healthy adult male it comes out on average to be 5800 ml. This TLC is equal to TRV plus IRV plus ERV plus RV. So all the these volumes, the tidal volume, inspiratory reserve volume, and then we have the residual volume and the expiratory volume, all these make up the total lung capacity. Then we have non-respiratory air movements. ये जो भी हम बात कर रहे थे जिस जो स्पायरोमीटर से चेक की जाती हैं और हम एयर की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात कर रहे थे, तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स थी, यानी आप एयर इनहेल करते हैं तो वो लंग्स में जाता है, लंग में जाता है तो एल्वेओलाई के थ्रू ब्लड में जाएगा और जब ब्लड में जाएगा तो टिश्यूज़ में पहुंचेगा और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए हमें एनर्जी मिलेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो वापस से लंग्स में आके और एक्सहेल आउट होके बाहर निकल जाएगा. दैट वाज रेस्पिरेटरी मूवमेंट. बट देयर आर सम नॉन रेस्पिरेटरी air movements like when we cough or when we sneeze, air जो है वो exhale out होती है. ये air की movements laughing में, crying में, yawning में, talking में, ये जो air की movements हैं जो respiration में काम नहीं देती, these are non-respiratory air movements. Then we have some anatomical dead spaces. Respiratory passageways get filled with air but do not contribute to gas exchange in the alveoli. Alright, so this is a person supposedly who's breathing. ये जो शख्स है ये ब्रीदिंग कर रहा है. जब ब्रीदिंग करेगा तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर जाएगी और जब एयर जाएगी तो उसके बाद लंग्स में पहुंचेगी. लंग्स में पहुंचेगी तो ऑब्वियसली उसके बाद ब्लड में जाएगी और टिश्यूज़ में जाएगी. बट जब इनहेलेशन की जाती है और एयर जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में आती है और उसके बाद लंग्स में चली जाती है, तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में से सारी एयर तो लंग में नहीं जाती, बिकॉज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ट्रैकिया एंड ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स, इनमें वैक्यूम तो नहीं है, यहाँ पे भी एयर तो मौजूद है. दीज आर स्पेसेस दैट ऑक्यूपाई द एयर.
सो कुछ एयर जो है जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो उस इन्हेलेशन में से कुछ एयर तो लंग्स में पहुंचती है, मगर कुछ एयर इस रेस्पिरेटरी पैसेजेस में में रुक जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ एयर 500 ml ऑफ एयर अगर हमने इन्हेल की तो उस 500 ml ऑफ एयर में से कुछ एयर यहाँ चली गई और कुछ एयर जो है यहाँ पे जितनी एयर अकोमोडेट हो सकती है वो तो यहाँ पे आ गई, क्योंकि हर जगह एयर तो हर जगह मौजूद है, जब स्पेस होगी तो वहाँ पे एयर तो मौजूद होगी। ये जो एयर है जो इस रेस्पिरेटरी पैसेजेस में रह जाती है ये लंग्स में नहीं जाती, और जब ये लंग्स में नहीं जाएगी तो ये ब्लड में नहीं जाएगी, और इसका मतलब एल्वियोलर वेंटिलेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, ब्लड में नहीं जाएगा और सेलुलर रेस्पिरेशन में काम नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये जो पैसेजेस में, इन पैसेजेस में जो एयर मौजूद है ये एयर हमारे किसी काम की नहीं है, ये एयर ब्लड में नहीं जाएगी और हमें एनर्जी इसमें अगर ऑक्सीजन मौजूद भी है ऑब्वियसली तो ये हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लड में नहीं जा रहा। इन स्पेसेस को जो हमारी एयर को खा जाती है, जो कि लंग्स में नहीं पहुंचने देती, इन स्पेसेस को हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस। बाय एनाटॉमी दीज आर डेड स्पेसेस बिकॉज दे आर accommodating our air and that air cannot reach the lungs. In a normal healthy adult person, these spaces they accommodate about 150 ml of air. इन spaces में 150 ml air जो है वो इसमें आती है पूरी, यानी अगर आप 500 ml ऑफ एयर ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, तो उसमें से 350 ml ऑफ एयर लंग्स में जाएगी, जो फ्रेश एयर थी एयर में से इनहेल की गई थी, उसका 350 ml ऑफ एयर जो है वो लंग्स में चला गया और 150 ml इस यहाँ पे रह गया। ठीक, सो दीज आर द डेड स्पेसेस and these dead spaces they extend between the nose to the terminal bronchiole. nose से लेके bronchiole तक का जितना भी पैसेज है उसमें जो एयर बंद हो जाती है और लंग्स तक नहीं पहुंच पाती वो डेड स्पेसेस कहलाती हैं। उसमें 150 ml ऑफ एयर जो है वो आती है। So then if we think about the inhalation and the exhalation, supposedly air inhale की गई 500 ml ऑफ एयर, जैसे हमने कहा टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम इनहेल करते हैं 500 ml ऑफ एयर अंदर जाती है और 500 ml ऑफ एयर जो है वो बाहर आती है। तो अगर हमने इनहेलेशन की और 500 ml ऑफ एयर जो है वो अंदर गई, लेकिन यहाँ पे इन स्पेसेस में तो ऑलरेडी एयर मौजूद थी, ऑलरेडी यहाँ पे एयर मौजूद है, यहाँ पे तो वैक्यूम नहीं है। सो जो 500 ml ऑफ एयर आपने इनहेल की, उस 500 ml ऑफ एयर ने इस एयर को जो इन स्पेसेस में मौजूद है इसको धक्का दिया। सो बिकॉज एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सो पहले तो ये एयर अंदर चली जाएगी, यहाँ पे जो 150 ml ऑफ एयर मौजूद थी पहले तो ये चली जाएगी ओल्ड एयर। दिस एयर वॉज फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो फ्रेश एयर नहीं थी, ये तो पिछली दफ़ा की एक्सहेलेशन की एयर जो है यहाँ पे ब्लॉक हुई हुई थी। सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग, व्हेन यू आर टेकिंग 500 ml ऑफ एयर इन, आउट ऑफ दैट 500 ml फर्स्ट दिस 150 ml ओल्ड एयर इज गोइंग टू एंटर इनटू द लंग्स। पहले तो ये 150 ml यहाँ से जाएगा लंग्स में, और जो 500 ml ऑफ एयर आपने एयर से इनहेल की थी उसमें से 350 ml फ्रेश एयर ऑक्सीजन फिल्ड एयर लंग्स में चली जाएगी। लेकिन 150 ml यानी 500 में से 350 ml तो लंग्स में चली गई, 150 ml यहाँ पे रह गई। देन सो इसका मतलब आपने इनहेलेशन की थी तो 350 ml जो है वो लंग्स में चली गई, एल्वियोलाई में चली गई। 150 ml फ्रेश एयर जो है, जो जैसे अभी हमने कहा कि आपने इनहेल किया तो इनहेलेशन में 350 ml लंग्स में चला गया और 150 ml फ्रेश एयर जो है वो यहाँ पे इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ब्लॉक हो गया। देन अगेन व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, दोबारा आपने एक्सहेलेशन की, सो एक्सहेलेशन में 500 ml ऑफ एयर एक्सहेल आउट होनी थी, टाइडल वॉल्यूम की एयर, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग पे हम 500 ml इनहेल करते हैं, 500 ml एक्सहेल करते हैं। सो जब 500 ml ऑफ एयर एक्सहेल हो रही थी तो पहले तो ये 150 ml बाहर निकलेगी इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, पहले तो ये 150 ml जो है वो बाहर निकल जाएगी, और इसके बाद यहाँ से जब 500 ml ऑफ एयर एक्सहेल आउट की जा रही थी उसमें से 350 ml ओल्ड एयर जिसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर निकल गया। लेकिन 150 ml, ये 350 प्लस 150 500 है, टोटल 500 ml ऑफ एयर एक्सहेल हो रही थी, उस 500 में से 350 बाहर चला गया और फिर 150 इधर ब्लॉक हो गया, ओल्ड एयर
फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो एक्सहेलेशन हुई 500 ml ऑफ एयर बाहर निकली, उसमें से 150 जो है वो थी जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में फंसी हुई थी, 150 वो निकली और 350 आपके लंग्स में से बाहर गई, और इस रेस्पिरेटरी पैसेजेस में फिर से 150 ml ऑफ एयर जो है वो ब्लॉक हो गया। दोबारा जब आपने इन्हेलेशन की, 500 ml ऑफ एयर अंदर ले जाने की कोशिश की, तो ये 500 ml ऑफ एयर जब अंदर जाएगी तो पहले ये वाली 150 ml अंदर जाएगी, पहले तो ये जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो ये फंसा हुआ है, तो पहले ये 150 ml ऑफ एयर अंदर जाएगा और 500 ml एयर में से, फ्रेश एयर में से 500 ml ऑक्सीजन फिल्ड जो एयर थी उसमें से 350 ml लंग्स में पहुंच जाएगा, जो कि फिर ब्लड में जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, और 150 ml फिर यहाँ पे फंस गई। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर इनहेलिंग 500 ml ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम में हर दफ़ा जब हम ब्रीथ करते हैं 500 ml ऑफ एयर इनहेल करते हैं, उस 500 ml ऑफ एयर में से 150 जो है वो इधर आपके इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ब्लॉक हो जाती है और 350 ml जो है वो लंग्स में पहुंचती है। और हर दफ़ा जब हम एक्सहेल करते हैं, एयर एक्सहेल आउट करते हैं, 500 ml ऑफ एयर बॉडी से बाहर निकलनी होती है, तो उस 500 ml ऑफ एयर, लंग्स में से 500 ml ऑफ एयर ने बाहर निकलना होता है, लेकिन उसमें से फिर 150 ml ऑफ एयर इधर फंस जाती है और 350 ml जो है वो बाहर जाती है। वो 150 जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फंसी हुई थी, साथ में वो निकल जाएगी। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर इनहेलिंग, out of the 500 ml, only 350 ml of air actually takes part in the alveolar ventilation, यानी 500 ml of air जो हमने inhale की थी उसमें 150 ml हमारे dead spaces में रह गई और सिर्फ 350 ml जो है वो lungs में पहुंची। lungs में पहुंचेगी तो alveoli में जाएगी, blood में जाएगी, alveolar ventilation का हिस्सा बनेगी, ब्लड में पहुंचेगी और उसमें जो ऑक्सीजन होगा उससे हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी मिलेगी। ठीक, देन वी ट्राई डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स। जब हमें ये पता चला कि 500 ml ऑफ एयर के हर दफ़ा हम जितना भी एयर इनहेल करते हैं उसमें से कुछ एयर जो है वो हमारे एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस में, यानी 150 ml ऑफ एयर जो है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज वेज तो कांस्टेंट है, ये कोई लंबे छोटे तो नहीं हो रहे। सो दिस इज़ दिस एवरी टाइम, ऑल द टाइम इन एन अडल्ट पर्सन, एक शख्स ने जितना ग्रो होना होता है, जब वो ग्रो हो जाता है तो उसके बाद उसके ये जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी 150 ml। सो वी नो दैट एवरी टाइम व्हेन वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग 150 ml of air gets stuck in the respiratory passageways. So then we tried different breathing patterns. The first one was quiet breathing at rest, यानी normally जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में normal breathing करते हैं, 500 ml of air अंदर गई और 500 ml of air बाहर आई, जिसे हम quiet breathing कहते हैं या breathing at rest कहते हैं। Then second breathing pattern was deep slow breathing. सेकेंड ब्रीदिंग पैटर्न वॉज डीप स्लो ब्रीदिंग। आपने डीप ब्रीदिंग की, जिस तरह हमें कहा जाता है कि डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है, गहरी सांस लेना चाहिए ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए। सो हमने दूसरा पैटर्न जो है वो डीप ब्रीदिंग, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। ऑब्वियसली जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो ब्रीदिंग का रेट भी स्लो हो जाएगा। थर्ड ब्रीदिंग पैटर्न वॉज शैलो रैपिड ब्रीदिंग। यूर ब्रीदिंग फास्टली बट शैलो, वेरी few amount of air is going inside. So the first pattern was quiet breathing at rest. The tidal volume was 500 and the normal respiratory rate is 12 breaths per minute. Normally 1 मिनट में 12 दफ़ा सांस ली जाती है जब 500 ml of air जो है वो अंदर जाए। डेड स्पेसेस की वैल्यू जो है वो 150, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। हमने चेक की पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग रेट, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में जा रहा है और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स से बाहर एक्सेल आउट हो रहा है। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास था टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 कम्स आउट टू बी 6000 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6000 ml ऑफ एयर जो है वो लंग्स में जा रही थी और 6000 ml ऑफ एयर जो है वो लंग्स से एक्सहेल आउट हो रही थी। देन वी चेक द एल्वियोलर वेंटिलेशन। उसके बाद हमने देखा कि ये जो 6000 ml ऑफ एयर बॉडी में, नॉट लंग्स में, बॉडी में 6000 ml ऑफ एयर जो हर दफ़ा ब्रीदिंग पर नोस्ट्रल से अंदर जा रही है और फिर बाहर निकल रही है, इस 6000 ml ऑफ एयर में से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में जाता है, जो हमारे एल्वियोलाई में जाता है। सो एल्वियोलर वेंटिलेशन
के लिए फॉर्मूला इज़ टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट. सो पहले आपने टाइडल वॉल्यूम 500 ml से डेड स्पेसेस का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 500 minus 150 comes out to be 350, and then multiply that by the respiratory rate, that is 12. So 350 into 12 is 4200. इसका मतलब ये है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम इन्हेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, तो 6000 ml ऑफ एयर एक मिनट में 6000 ml ऑफ एयर हमारे नोस्ट्रल से हमारी बॉडी में जाता है, और 6000 ml ऑफ एयर हमारे नोस्ट्रल से बॉडी से बाहर निकलता है. लेकिन आउट ऑफ दैट 6000 ml ओनली 4200 ml of air reaches the lungs and reaches the alveoli. ये वो 4200 ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे ब्लड में जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा बनेगा और हमें एनर्जी मिलेगी. बाकी का जो एयर है, द रेस्ट ऑफ द एयर इज़ यूजलेस, क्योंकि वो जो है हमारे एक मिनट में दैट मच अमाउंट ऑफ एयर गेट्स स्टक इन अ रेस्पिरेटरी पैसेज वे. 6000 माइनस 4200 1800 की ml जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में स्टक हो जाता है एक मिनट के दौरान. दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज़ यूजलेस फॉर अस बिकॉज इट डज नॉट रीच आवर लंग्स. Then we tried the other pattern, the second pattern, that was deep slow breathing. So deep breathing की गई, बहुत गहरी सांसें ली गई. 1200 ml of air was taken inside, and the respiratory rate obviously become less, and so it was 5 in 1 minute. एक मिनट में 5 दफ़ा सांस ली गई जब 1200 ml of air जो है वो इनहेल की जा रही थी. डेड स्पेस की वैल्यू तो सेम रहेगी 150 ml. जब पल्मोनरी वेंटिलेशन चेक की गई, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट 1200 into 5, इट केम आउट सेम 6000. यानी फिर भी चाहे आप जितनी भी गहरी सांस लो और जितनी कम दफ़ा भी एक मिनट में सांस ली, 6000 ml ऑफ एयर जो है वो बॉडी में जा रही है इन 1 मिनट, और 6000 ml ऑफ एयर जो है वो एक्सहेल आउट हो रही है. लेकिन जब हमने एल्वियोलर वेंटिलेशन की वैल्यू चेक की, यानी इस फार्मूला से जब हमने एल्वियोलर वेंटिलेशन की वैल्यू चेक की, तो वैल्यू हमारे पास आई 5250. दिस वॉज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वॉज एंटरिंग द लंग्स. ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में जा रहा है, और ऑब्वियसली लंग्स में जाएगा तो ब्लड में जाएगा. सो इट इज़ ऑब्वियसली मोर देन 4200. इसका मतलब ये है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर एल्वेलाई में जाती है, ब्लड में जाती है, और हमें ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन में ज़्यादा ऑक्सीजन अपना पार्ट प्ले करेगा और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो मोर अमाउंट ऑफ एयर इज़ यूजफुल, लेस अमाउंट ऑफ एयर. अब यहाँ पे 5250 माइनस 6000 कम वैल्यू आती है फ्रॉम 1800. सो कम एयर जो है वो एक मिनट में ज़ाया हो रही है एज़ कम्पेयर टू द क्वाइट ब्रीदिंग. थर्ड पैटर्न वॉज शैलो रैपिड ब्रीदिंग. सो आपने बहुत जल्दी सांस ली. इन 1 मिनट 40 ब्रेथ्स वर टेकन. एक मिनट में 40 दफ़ा ब्रीदिंग की गई, और उसमें 150 ml ऑफ एयर जो है वो बॉडी में जा रही थी और बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट हो रही थी. डेड स्पेस की वैल्यू सेम थी. सो जब हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन चेक की तो दैट केम आउट टू बी सेम 6000 ml. बट व्हेन वी चेक द alveolar ventilation by this formula, it came out to be 0. There was no alveolar ventilation. That means that no volume of air is reaching the lungs or reaching the alveoli and entering into the blood, and there was then फिर तो cellular respiration रुक जाएगी, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा. So शैलो ब्रीदिंग जो है उसमें तो हमें एनर्जी कोई नहीं मिल रही है. इसका मतलब ये है कि डीप ब्रीदिंग इज़ ऑलवेज गुड. डीप ब्रीदिंग की जाए तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स तक पहुंचती है, और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जब लंग्स तक पहुंचती है तो वो आपके ब्लड में जाएगी, टिश्यूज़ में जाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा बनेगी और ATP प्रोड्यूस होगा. Gas exchange. The exchange of oxygen and carbon dioxide between alveoli and blood occurs via passive diffusion. Passive diffusion होता है. We have the Dalton's law of partial pressure, that is the total pressure exerted by a mixture of gases is the sum of the pressure exerted by each gas in the mixture. जो हमारा total atmospheric pressure है that is 760 mmHg. This pressure is equal
to the partial pressure exerted by each gas in a mixture. एक एयर में, किसी एयर में जितनी भी गैसेस मौजूद होती हैं वो अलग अलग जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड सो ऑन. सो ये हर गैस, एक एयर में जितनी भी गैसेस हैं सब अपना इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी एंड the sum of the pressures exerted by individual gases is equal to the atmospheric pressure, and that value is always constant. It is always going to be 760 mmHg. एयर जो है हमारी एयर ड्राई एयर है और उसमें वाटर वेपर का प्रेशर जो है वो बहुत निग्लिजिबल है. बट जब हम इनहेलेशन करते हैं और एयर हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर तो मॉइस्टनेस है, सो वाटर वेपर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. जब वाटर वेपर का प्रेशर बढ़ जाता है तो जो दूसरी गैसेस अंदर लंग्स में गई हुई होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका पार्शियल प्रेशर फिर कम हो जाता है क्योंकि टोटल वैल्यू इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 760 mmHg. दैट इज़ अ कांस्टेंट. सो अगर किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, सो दैट द टोटल कैन रिमेन द सेम. ये जो पार्शियल प्रेशर्स हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें परसेंटेजेस पता हों. जैसे कि हमें पता है कि एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 78.6%. सो वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय दिस फॉर्मूला 78.6 डिवाइड बाय 100 इनटू द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 760 mmHg एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 597.4. इसी तरह अगर हमें ये पता हो कि एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है दैट इज़ 20.9, तो फिर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं 20.9 डिवाइड बाय 100 इंटू 760 mmHg दैट इज इक्वल टू 158.8 mmHg. सो अगर हमें किसी भी गैस की का परसेंटेज पता हो कि एयर में कितना परसेंट ऑफ दैट गैस इज प्रेजेंट, वी कैन कैलकुलेट इट्स पार्शियल प्रेशर. एंड सिमिलरली इफ वी नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस in the air, we can calculate the percentage. अगर हमें एक वैल्यू पता हो तो हम दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइनली हम देखते हैं partial pressure gradient. Let's see how the partial pressure of oxygen and carbon dioxide changes when it is present in the air and then when it moves in the body. So initially जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 160 mmHg. Here see we calculated 158.8. This is almost 160, so हमने वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया 160 mmHg. और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ नॉर्मली 0.3 mmHg. सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेग्लिजिबल 0.3 mmHg. उसके बाद ये एयर जब इनहेल की गई तो ये एल्वियोलाई में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी. सो इन द लंग्स क्योंकि ऑलरेडी पिछली एक्सहेल्ड एयर मौजूद थी और लंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द एयर, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, 40 mmHg हो गया. जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज़ 104 mmHg. एंड प्लस लंग्स में वाटर वेपर का भी पार्शियल प्रेशर है. एयर में ड्राई एयर है, यहाँ पे वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर नेग्लिजिबल है, बट बॉडी में तो ज़्यादा है. तो ऑटोमेटिकली जब वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर बढ़ा, एक चीज़ का प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा क्योंकि टोटल हैज़ टू रिमेन द सेम. सो पार्शियल प्रेशर of the oxygen reduced from 160 to 104 mmHg and partial pressure of the carbon dioxide increased from 0.3 to 40 mmHg क्योंकि लंग्स में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद था बिकॉज ऑफ द लास्ट एक्सहेल्ड एयर. उसके बाद ये जो है एयर डिफ्यूज़न कर गई और डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला गया. जब ऑक्सीजन ब्लड में चला गया हमारे पल्मोनरी वेन्स में और उसके बाद आर्टरीज में, सो ये यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था. ठीक, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्ड 104 mmHg एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्ड 40 mmHg. इसी तरह ये सर्कुलेट करता गया और उसके बाद ये टिश्यूज़ तक पहुँच गया. जब ये एयर टिश्यूज़ में गई और ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करके टिश्यूज़ में चला गया,
तो टिश्यूज़ में सेलुलर रेस्पिरेशन होनी थी, टिश्यूज़ में सेलुलर रेस्पिरेशन हुई और सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन जो है वो बर्न होगी बिकॉज एटीपी प्रोड्यूस होनी थी और एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। सो जब ऑक्सीजन बर्न हुई तो इसका मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई और उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकेम इन द टिश्यूज, द पार्शियल pressure of oxygen became less than 40 mmHg and that of carbon dioxide became more than 45 mmHg। फिर डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई और डीऑक्सीजनेटेड हमारा जो ब्लड है सिस्टमिक वेन्स में एंड उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज में जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि सिस्टमिक वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक। कम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज सम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकेम 40 mmHg एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकेम 45 mmHg। उसके बाद ये ट्रैवल किया, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ ट्रैवल किया टुवर्ड्स द लंग्स। 40 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाज 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज 45 mmHg। देन ये डिफ्यूजन के ज़रिए ये एयर जो है वो लंग्स में चली गई। जब डिफ्यूजन के ज़रिए ये एयर लंग्स में चली गई तो लंग्स में तो पिछली इनहेल्ड एयर मौजूद थी और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद था। सो जब ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। अगेन इट बिकेम देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एक्सपायर्ड एयर दिस वाज 104 mmHg और 40, और उसके बाद जब आपने ये एक्सहेल की तो एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 120 mmHg था और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो 27 mmHg था, ठीक। लेकिन जैसे ये एयर थोड़ी देर में एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिल गई और अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वापस से 160 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वापस से कम हो जाएगा नॉर्मल, अगर आप किसी ओपन एरिया में हैं और आप बहुत कन्फाइंड एरिया में या बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में से छोटी सी जगह में नहीं है जहाँ पे एयर जो है वो आप एक्सेल कर रहे हैं और वहीं पे। So this was the partial pressure gradient of the body and this was all about the respiratory system. Thank you.